So, very good evening, friends. This is your own friend Bharat, and welcome back to our YouTube channel. So, first and foremost, is I would like to thank you for your continuous support and encouragement, which you are showering to us in terms of your views, likes, and shares. So, I hope that our content is adding some value and this makes us motivated to bring the best of the content in a very simplified manner, which is our key, focus area, so that we can, share our learnings. ये जो भी आपके साथ शेयर होता है, this is nothing but a, एक सार है, एक summary है, whatever I normally personally have gone through, in my investment or trading journey in the markets. So I intentionally want that this should be, helping you to reduce your learning curve. So with that focus, I will like to, get started for today's stocks or not रात जो हम एक डेली का एक एपिसोड करते हैं उसमें डेली नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो मतलब एक वॉच लिस्ट में रखे जा सकते हैं उन पे प्राइस एक्शन पे मॉनिटर किया जा सकता है बट जो आज का जो हम लोग की एपिसोड करने वाले हैं दैट इज टोटली गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन सो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ कि हाउ आई डू इट पर्सनली आपके सामने जो वो स्टॉक्स आते हैं तो उनको मैं कैसे शॉर्टलिस्ट करता हूँ कैसे फिल्टर करता हूँ तो डेली ही हमारा इंटेंशन ये रहता है कि हम लोग लर्निंग के तरफ ध्यान दें सीखने और सिखाने में ध्यान दें रेदर देन बीइंग जस्ट वरीड अबाउट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए मेरा टारगेट क्या होना चाहिए बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस कॉल्स एंड शॉर्ट टर्म बीटीएसटी स्टफ और बाय टुडे सेल टुमारो यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं वो एक पोजिशनल काइंड ऑफ व्यू से करते हैं और वो एक फैक्ट्स पे करते हैं डेटा बेस्ड और डेटा ड्रिवन जो है डिसीजन मेकिंग की तरफ भी ट्राई टू बी मूविंग टुवर्ड्स so take this all inputs just for your learning purpose and my intention is to help you out in bringing the content in the best format in a very simplified way so that you can learn from it. So before we start, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि there are playlist lot of new users have joined us so for their benefit. तो सबसे पहले आपको ये 5 जो है ये प्लेलिस्ट मिलेंगी तो इन पांचों प्लेलिस्ट का जो एजेंडा है वो टोटली डिफरेंट है तो अगर आप लाइव क्यू एंड ए कनेक्ट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट तो लाइव क्यू एंड ए कनेक्ट विद निवेशक भरत इज द सीरीज which I conduct on every Friday at 9 p.m. and that is a meeting by invite. So you can join us on our Telegram channel where I normally every Friday I share a link and in that link probably you can join us and once you join us you will be able to see the meeting invite there and after that it is basically to cater to your stock specific queries without focusing much on the stop loss or target or anything but process oriented. Second thing is market analysis for next week, which we normally do on Sunday every 9 o'clock. I just try to release the video. So यहाँ पे हम लोग जो आने वाला हफ्ता है उसमें कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है ये एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस रहता है बेसिकली आई डोंट पुट लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दिस थिंग इन द सेंस to give you the levels to trade and all. My intention is here to share the broader levels because a lot of requests through DM and personal pushes have been there for short-term traders to at least share my chart observations. So you can go through for that in this section. This playlist is just a summary of what is happening on a daily basis within the market. So इसमें जो हम broader level दिखाएंगे डिस्कस करेंगे उसका जो छोटा समरी है वो आपको डे टू डे बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिलेगा तो एक ये समरी है बेस्ड ऑन हुआ क्या है और क्या होने की पॉसिबिलिटी है एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए ये जो चीज है ये जो प्लेलिस्ट है दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच आई नॉर्मली हैव बीन वेरी मच फोकसिंग अपॉन इज यहाँ पे जो लर्निंग है पूरा उसका जो समरी है व्हाट आई हैव डन द स्टूपिड मिस्टेक्स पर्सनली और जो मैं दूसरा लोगों को देख के सीखा हूँ या जो भी है दैट समरी आई पुट नॉर्मली हेयर एवरी टाइम तो ये चीज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या अगर आपका स्पेसिफिक लर्निंग फोकस है कंसेप्चुअल लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस आप जो भी अगर चीज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच सीखना चाहते हैं तो दिस प्लेलिस्ट इज अ मस्ट फॉर यू
you should and you ideally should not miss this playlist. तो यहाँ पे मैं अपने फ्यूचर में भी वो चीजें ऐड करता रहूंगा जो आप लोगों को लंबे टाइम तक आपके काम आएंगी मार्केट्स को समझने के लिए। और ये सारे जो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस का पूरा जिस्ट है, जो क्रक्स है, जो समरी है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू आप तक लाया सकूं। So you should not miss this. And first and foremost is thanks for your encouragement for this video part one correlation जो हमने कल ही upload किया. It has received a huge response. So thanks for that, and hopefully I feel like it is adding value to your learning as well. और जो लास्ट है जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि डे टू डे बेसिस पे जो भी स्टॉक्स अगर प्राइस एक्शन वाइज मोमेंटम वाइज जो भी एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले कर रहे हैं मार्केट में आज दिखा रहे हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट हियर ऑन दी दिस करंट वीडियो आल्सो। So most of you are already there with us on the Twitter as well. So if at all you are not there, you can join us here also for an intraday basis, or maybe some things which I definitely would not be able to bring everything on the YouTube. So कुछ भी अच्छा सेटअप्स होता है या कुछ अच्छे चार्ट्स होते हैं जो कि मैं मतलब विद इन द डे ऑल्सो पोस्ट करता हूँ या ईओडी पे बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशंस और रीडिंग ऑफ द चार्ट्स, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। So there you can also join us. So now let's get started, और आज के लिए हम लोग चलते हैं कि जो स्टॉक्स ऑन रडार का वीडियो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का वीडियो ये डिफरेंट रहेगा कि इसमें हम लोग सिर्फ आप स्टॉक्स के नाम पे लेवल्स पे मत जाइएगा। आज ये जो है प्योरली मेरा एक इंटेंशन है कि आज जिस तरह से मार्केट में ओवरऑल टर्मोइल चल रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस की न्यूज आ रही है, मल्टीपल न्यूज फ्लोज पैरेलली चल रहा है, जिसकी वजह से वी आर सीइंग अ ह्यूज करेक्शन इन फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। And it is not across limited to our Indian market. It is based globally. Broader indices globally are being in a facing a brunt of heat. Crude is going all time highs here and all. There are multiple things at the macro level also there are a lot of news flows. उसके basis के ऊपर क्या हो रहा है कि markets में lot of volatility has increased. तो अगर हम यूएस का सीबीओई विक्स देखेंगे या इंडिया का विक्स देखेंगे, दे सीबीओई विक्स हैज क्रॉस नियरली 32, मतलब आज का जो अभी तक का हाई था शायद टुडे डे हाई जो था 32 था सीबीओई विक्स। और इवन इंडियन विक्स इज आल्सो राइजिंग, सो विच इन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि अभी जो है आपको फटाफट भागना नहीं है, रश नहीं करना है, चाहे जितना भी मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, आपको यहाँ से इमीडिएटली बड़ी पोजीशंस नहीं बनानी है एट द इंस्टेंस विच इज करंटली प्रिवेलिंग। Why I am saying this? So because नाम में कुछ नहीं रखा है, उसमें लेवल्स में कुछ नहीं रखा है, I anybody else with small efforts also can learn that skill. My intention is कि आप लोग प्रोसेस को समझें। प्रोसेस अगर आप अपने एंड पे भी करेंगे तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन फॉर यू ऑन अ डेली बेसिस, हैंड पिक स्टॉक्स और उसमें क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज है वो। तो आज का जो वीडियो रहेगा उसका मोटिव ये रहेगा कि प्रोसेस के बारे में हम लोग ज्यादा शेयर करें। नाम जो है वो आप जस्ट एक रेफरेंस पर्पस के लिए ले सकते हैं, एंड आई विल नॉट बी कवरिंग ऑल द नेम्स आल्सो इन डिटेल्स। माय इंटेंशन इज टू जस्ट शेयर द प्रोसेस बिहाइंड इट। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखेंगे कि अगर ग्लोबली मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, अगर सारे इंडेक्सेस अक्रॉस द ग्लोब अगर कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में है, और ओवरऑल हमारी मार्केट्स भी जो थी वो साइडवेज मार्केट्स थी पहले, अभी भी साइडवेज ही चल रहा है, तो उसमें जो है हमें नहीं पता कि वो रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। तो इस टाइम पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाना सबसे बड़ा जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत बड़ा गैम्बल हो सकता है या एक डेंजर हो सकता है, इवन विद द स्टॉप लॉसेस। तो यहाँ पे ये जो मार्केट है ये सिर्फ उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए फ्रूटफुल है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो एक दो करके शेयर्स अगर छोटा छोटा करके ऐसा भी फॉर्मेट में निबल करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। एट द सेम टाइम अगर टेक्निकल्स में वो पहले इतना ज्यादा प्राइस मूवमेंट्स दिखा चुकी हैं, अपने सारे मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर जा चुकी थी, आरएसआईज जो थे उनके 90s हो गए थे, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम लेवल हो गया था, वो अगर अब एक कूलिंग ऑफ ड्यू टू दिस ओवरऑल मार्केट वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो वहां पे आप अपना पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं। डोंट गो इन ऑल इन, डोंट गो फॉर लमसम अमाउंट्स दीज टाइम्स।
प्रेफरेबली ट्राई टू बी विद द स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस जहाँ पे फंडामेंटल्स हैं, जहाँ पे बिजनेस की स्केलेबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ पे कि मैनेजमेंट्स जो हैं वो वेरी सीरियसली दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल विद अ क्लियर विजन व्हिच हैज ऑलरेडी बीन आर्टिकुलेटेड। तो वो सब चीजें, और इवन जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने वन साइडेड मूव अभी तक के दिखाए हैं और जो कि अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर हो गए थे, उन सब स्टॉक्स में जैसे पहले भी मैं बोलता आया हूँ कि डोंट चेज द स्टॉक्स, डोंट चेज द प्राइसेस, let the price and the stock come to your own प्री डिसाइडेड लेवल्स। सो अगर वो चीज जो है, वो मार्केट ऐसी करेक्शंस आपको एक अपॉर्चुनिटी देती हैं, आपको अपने लेवल पे अपनी कंडीशन के हिसाब से अगर मार्केट ऑब्लाइज कर रही है, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, और दिस इज नथिंग बट योर डिस्काउंट सेल और एंड ऑल दैट। और ये लेवल्स भी सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, दैट अगेन विल बी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्लोबल टर्मोइल। फर्स्ट हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स से और जो है मिड कैप इंडेक्स से, बिफोर आई जस्ट स्टार्ट और स्टॉक रेफरेंसेस आल्सो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि फ्लैग का कंसोलिडेशन भी चल रहा था और एक डिसेंडिंग राइजिंग चैनल भी, सॉरी, वो भी एक था। तो उसकी जो लोकल जो लोअर ट्रेंड लाइन थी वो भी जो है आज ब्रीच हुई है विद द गैप डाउन। और स्मॉल कैप जो है वो हाईली रिस्क, हाई बीटा स्टॉक्स, हाई बीटा जो है इंडाइस है, तो वहां पे अगर हम लोग ये देखेंगे, सो ये जो है हमारा गैप डाउन आज जो हुआ है ये ट्रेंड लाइन से नीचे हुआ है काफी, राइट। तो इट इट इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि जो है अभी निफ्टी स्मॉल कैप भी जो है एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट या पुल बैक देख रहा है। ऐसा नहीं है कि जो इतने टाइम से, इतने बड़े ड्यूरेशन से जब देख रहे हैं हम लोग यहाँ से अराउंड अबाउट 13 नवंबर 20 से चल रहा है, तो एकदम से जो है वो बिल्कुल गिरना शुरू हो जाएगा ऊपर जाके, इतना ऐसा नहीं होता मार्केट्स में। मार्केट्स वर्क इन अ वेव फॉर्मेट। डेफिनेटली अगर डाउन ट्रेंड भी शुरू होता है इन केस, तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड जो है एकदम आपको डेली बेसिस पे ऐसा मिलेगा देखने को कि इट इज गोइंग डाउन 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 डाउन। देयर विल बी डेफिनेटली पुल बैक्स, देन अगेन रिट्रेसमेंट्स, देन पुल बैक्स, देन the impulsive waves and corrective waves will work. So what I want to try and highlight here is that till the time we are not making a fresh lower high and a lower low, your nifty small cap can bounce back sharply and resume its primary uptrend. फ्यूचर में अगर लोअर 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 हाई हमें बड़े टाइम फ्रेम, दैट इज डेली या वीकली पे, अगर जब तक नहीं मिलता है, तो दीज पुल बैक शुड बी कंसिडर्ड एज अ पुल बैक्स, नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब हमें बड़े टाइम फ्रेम पे से वीकली पे अगर हमें 1 या 2 हफ्ते तक अगर लोअर हाइज लोअर लोज बनना शुरू हो जाते हैं, देन वी शुड बी हैविंग अ पॉइंट वरी और पॉइंट ऑफ कॉशन। टिल द टाइम वो चीज सस्टेन नहीं करती है, ये फेक ब्रेकडाउन्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे हुआ, अब हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद या इस वीक में या नेक्स्ट में हम लोग ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएं, देन वी स्टार्ट अवर जर्नी अप साइड, क्योंकि बेस्ड ऑन करंट डेटा प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा लगती है, राइट। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंडली अगर हम मिड कैप पे देखते हैं, तो मिड कैप इज अगेन शोइंग द साइंस ऑफ वीकनेस, बिकॉज सब जगह पे ही हो रहा है, इट इज नॉट आइसोलेटेड, वी आर ग्लोबली कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड विद अवर ब्रॉडर इंडाइसेस। अगर वो सब करेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं है कि ये छूते रहेंगे कि करेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर आप पास में देखेंगे, मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है एंड वी हैव डिस्कस इन मल्टीपल प्रीवियस वीडियोस एज वेल इन आवर यूट्यूब चैनल, ये सपोर्ट हमेशा यहाँ से इस लोअर ट्रेंड लाइन पे ली है, ट्रैक कंसोलिडेशन जो कि हो रही है काफी टाइम से, और अभी हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं एज फार एज निफ्टी मिड कैप इज कंसर्न, वहां पे ब्रीच नहीं किया है। तो हो भी सकता है कि ये आने वाले कुछ 1-2 दिनों में अगर ग्लोबली और ब्रॉडर इंडाइसेस भी अगर करेक्ट करते हैं, तो ये भी शायद ब्रीच कर दे। लेकिन अगर वो ब्रीच होता है तो सीधा ये मतलब नहीं होगा कि आप जाके सारे मिड कैप के स्टॉक्स को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। दिस इज नॉट हाउ द मार्केट। यहाँ पे भी पुल बैक आएगा इन केस अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना भी है। अभी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग और चार्ट ऑब्जर्वेशन, ना तो बैंक, सॉरी, स्मॉल कैप इंडेक्स में और मिड कैप इंडेक्स में ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, दिस इज मोर ऑफ अ पुल बैक। It can be a deep pullback based on their high beta nature, but till the time we are not making any lower high, lower low continuation pattern for coming 2 weeks, 3 weeks, sustain नहीं हो रहा है अगर, तो वो कोई ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं है। दैट इज व्हाट माय हाईलाइट ऑफ दिस एंटायर कन्वर्सेशन वुड बी। अब चलते हैं हम लोग कैसे प्रोसेस के बाद।
अब आपको वो स्टॉक्स देखने हैं जहाँ पे कि काफी टाइम से रिलेटिव स्ट्रेंथ चल रही थी एज अ सेक्टर। सबसे पहले हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से शुरू करेंगे। हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जो थीम्स वर्कआउट होती हुई दिख रही हैं, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, जैसे कि आपका कैपिटल गुड सेक्टर था, जैसे कि आपका से पैकेजिंग सेक्टर है फॉर एग्जांपल। तो ये सारे जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ, शुगर है आपका, वो सारे काफी टाइम से रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। तो अब ऐसा नहीं है कि वो लोग वो स्टॉक्स या वो सेक्टर्स में गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, बट वो अभी भी हम लोग उन चार्ट्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखें। एक्शन कुछ नहीं लेना अभी, उसको वॉच लिस्ट में रखिए, उसको देखिए कि वहां पे आप डेवलपमेंट कैसे होती है, अगर मार्केट्स के साथ में कंपैरिजन में उनमें फॉल हो रहा है तो कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका रिवर्सल कहाँ से होना शुरू होता है, वो आपको वॉच लिस्ट में रख के ही पता चलेगा। यू कैन नॉट ट्रैक 8,000 स्टॉक्स ऑन अ डेली बेसिस। तो वो वॉच लिस्ट बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको पुराना दिनों का होमवर्क करना है, या आपको पुराने जो है हमारे चैनल के सारे जो भी वीडियोस, आपको अगर डेली समरी सीरीज में जाएंगे तो जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, अगर वो आप 100 रुपए में खरीदना चाह रहे थे और अगर अब आपको 80 में मिल रहा है पुल बैक में, या 60 में मिल रहा है, वहां पे आपको अपनी वॉच लिस्ट में उसको रेडी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर वो 60 से जब भी आपको रिवर्सल दिखाएगा और अपने प्राइमरी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, you can start allocating based on your risk appetite and risk reward। अगर फेवरेबल है आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करने के बाद, you can take your positions accordingly। so that depends upon you। तो अब उसी तरह से हम लोग कुछ एक स्टार्ट करते हैं, कुछ एक सेक्टर्स के बेसिस पे भी। जैसे पॉलीप्लेक्स, लेट मी स्टार्ट विद पॉलीप्लेक्स। पिछले काफी टाइम से पॉलीप्लेक्स को मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ और इवन पैकेजिंग सेक्टर को डिस्कस कर रहा हूँ कि दैट हैज बीन शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेमेंडसली इन द पास्ट फ्यू सेशंस। तो अब यहाँ देखिए, अगर निफ्टी में इतना बड़ा फॉल के बाद में भी वी आर स्टिल हैविंग अभी भी 21 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया डेली का चार्ट पे। सेकेंडली अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिंपली जो है अभी भी वो चैनल मेंटेन्ड है जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है। थर्डली सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो इसमें से एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है कि जो कि डबल बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं उसे। तो मतलब कितना ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक। आपको इसको ये नहीं कह रहा है कि इसको आपको कल जाके जंप करना और परचेज कर लेना। दिस इज नॉट द इंटेंशन बिहाइंड दिस एंटायर वीडियो ऑफ टुडे स्पेसिफिकली। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आपको देखना है, अगर यहाँ पे फिर से कल अगर नीचे आता है, कहाँ तक नीचे आता है, रिवर्सल कहाँ से लेगा, उसके लिए आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना। दिस इज द प्रोसेस। डोंट गो बाय द आउटकम के यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मुझे टारगेट क्या करना है। दैट एनीबडी कैन लर्न। माय इंटेंशन टुडे इज टू मेक यू you know self dependent based on the process as well as the psychology behind it। साइकोलॉजी के लिए तो हमने कल भी जो वीडियो शेयर किया, आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं। correlation between markets and human psychology that will definitely help you for sure to change your perspective to look at the things in the markets। इसी तरह से अगर इसी सेक्टर से हम लोग और देखेंगे तो जिंदल पॉली करके देखिए आप। जिंदल पॉली का भी वही सेम प्राइस स्ट्रक्चर है, प्राइस चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज देखने को मिल रही है। मतलब इतने बड़े फॉल में भी जो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, निफ्टी करेक्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली। आपका जो जिंदल पॉली है वो अभी भी नियर बाय टू द ऑल टाइम हाई ही जो है कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से। इसी तरह से अगर हम लोग चलते हैं रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं रिलेटिवली, इवन एज अ सेक्टर वो भी कंसोलिडेट कर रहा है पिछले काफी टाइम से। ब्रिगेड को देखिए, तो ब्रिगेड में भी जो है काफी अच्छे टाइम से जो है ये आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। आपको ये देखना है, इसलिए वॉच लिस्ट में रखना है कि कहाँ से जाकर हो सकता है कि यहाँ से इस पर ये नीचे कल जाते 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 यहाँ पे आ जाए। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी विच यू ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ। यहाँ पे अगर आता है और आपकी वॉच लिस्ट में रहेगा तो यू कैन प्लान योर एक्शन अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। और आपको सेटअप सही मिलता है आपके अकॉर्डिंगली, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर जो हूँ वो आपको सजेस्ट करते हैं, यू कैन प्लान योर पोजीशन। इन सब चीजों के लिए आपको वॉच लिस्ट में रहना जरूरी है। और ये वॉच लिस्ट में कैसे आ रहा है करके, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। इसी तरह से अगर अब हम लोग चलते हैं जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन में, तो डीप इंडस्ट्रीज को भी मैंने काफी टाइम डिस्कस किया है अपने रडार में। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली 21 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता आ रहा है। और अभी बिल्कुल एग्जैक्टली जो आज का क्लोज है तो 21 पीरियड मूविंग एवरेज पे भी है। एट द सेम टाइम अगर फॉल देख रहे हो तो फॉल जो है वो लोअर वॉल्यूम्स पे है। ठीक है। विच इन itself is by default implicitly demonstrating the relative strength in the stock
सो ऐसी चीजों को अपने वॉच लिस्ट में रखना है, ऐसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। आपको ये नहीं करना कि जाके कुछ डिसीजन लेके कूद पड़ना है और अपना कल लगा देना है कुछ ना कुछ पैसा और बोलना है कि मेरे को बाद में मार्केट में मेरे को धोखा दिया है, या मेरे को मतलब मेरे को तो इतना सब ट्रेंड समझ आता है, सब कुछ समझ आता है। दिस इज नॉट हाउ द मार्केट। आपकी साइकोलॉजी प्लेज अ की रोल, एंड एट द सेम टाइम योर स्किल आल्सो टू अंडरस्टैंड द लेवल्स एंड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, दैट मैटर्स। आपकी एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज, आपके स्किल और आपकी साइकोलॉजी, अगर ये तीनों जब हैं एक साथ में मिल जाती है ना, देन यू बिकम डेंजरस फॉर मार्केट्स rather than the markets being dangerous for you। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज देन। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर्स की बात करेंगे तो लक्ष्मी मशीन जो है वो कंटिन्यूअसली ऑल टाइम हाई का कैंडिडेट रहा है पिछले कितने महीनों से नाउ। कंटिन्यूअसली अगर आप आज देखोगे तो वहीं पे वो भी सपोर्ट जोन की तरफ जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो क्लोज हुआ एग्जैक्टली एट 21 पीरियड मूविंग एवरेज, और आज ग्रीन कैंडल के साथ हुआ, इतनी वॉलेटाइल मार्केट, क्लियरली अगेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ इज विजिबल। मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट व्हाट माय इंटेंशन टुडे इज डोंट टेक दीज प्राइस लेवल्स एज रेफरेंस टुडे। आज आप ये देखिए कि हमारा प्रोसेस क्या है, ये नाम जब आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो और पिछले के जितने भी वीडियोस अगर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं तो आप लोग उसको जाके दोबारा से देख सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग पर्पस, विच विल हेल्प यू आउट टू टेक योर ओन डिसीजंस इंडिपेंडेंट। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो फ्लोरोकेम पे चलते हैं। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छे फंडामेंटली भी स्टॉक्स अच्छे हैं और जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे रहे। अब अगर हम इसको टॉप पे लेना चाह रहे थे हर प्राइस पॉइंट पे, यहाँ पे भी आपका देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल इंटैक्ट है अभी। राइट, ये राइजिंग चैनल इंटैक्ट है अभी। Sorry for this thing. I'm not taking tools to draw exactly precisely, but the reference points है आपके लिए। यहाँ पे अगर हम लोग अब 21 पीरियड मूविंग एवरेज को आज तोड़े हैं, उससे नीचे क्लोज हुए हैं, बट अगर चैनल मेंटेन्ड है या जहाँ से भी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कभी भी रिवर्सल मिलता है आने वाले कुछ दिनों में, तो वहां से व्हाई वी शुड नॉट हैव दिस इन अ वॉच लिस्ट टू आइडेंटिफाई दैट एंड स्पॉट दैट रिवर्सल इन द डेज टू कम। उसके बाद आपका शुगर सेक्टर के बारे में बात किए बगैर वी कैन नॉट क्लोज दिस वीडियो ऑल्सो। सो बलरामपुर अगर आप देख रहे हैं तो बलरामपुर अच्छा खासा आज 21 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे बड़ा क्लोज दिया है बीरिश कैंडल के साथ, बट अगर देखोगे तो दिस इज नथिंग बट योर ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन। यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद आज जो है ये रीटेस्ट जोन में वहीं पे क्लोज दिया। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट ले, आई डोंट नो, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। आपको इसको वॉच लिस्ट में इसलिए रखना है कि जहां से रिवर्सल आएगा, दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग स्टॉक है, मोमेंटम बैक्ड स्टॉक है, तो यहाँ पे भी जो है आपको अपनी वॉच लिस्ट में इसलिए रखना है कि वंस यू स्पॉट द रिवर्सल यू कैन प्लान योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग। ठीक है। उसी तरह से देन वी कैन सी कि शारदा क्रॉप केम, जिसका कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है और मैं भी इसको काफ़ी टाइम से शेयर कर रहा हूँ अपने चैनल सीरीज में। सो देयर ऑल्सो यू कैन सी, अभी मतलब ये देखिए एकदम से सीधा जो है ये वन साइडेड मूव आया था। मार्केट्स डोंट वर्क इन दैट। It has to play, it has to come, and satisfy statistical rule of mean reversion, which is very much highly visible and applicable in stock markets. तो मीन रिवर्जन ये है कि जब जितना दूर अपने मीन से चला गया था या अपनी मूविंग एवरेज से चला गया था वहां तक आएगा उसे एक बारी में। उसके लिए आपको वेट करना, उसके लिए आपको हर कैंडल पे यहाँ पे भागना नहीं था। ये साइकोलॉजी का पार्ट है। ये आपका यहाँ पे आपको फोमो नहीं में नहीं जाना था, राइट। यू शुड हैव अवॉइडेड योर फोमो to enter at any rising candle and every rising candle। अब आपको यहाँ पे अगर एक फॉल मिल रहा है, दिस इज नथिंग अ फॉल बट दिस इज मोर ऑफ अ पुल बैक और अ रिट्रेसमेंट। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट अप फ्रंट, पहले से नहीं बता सकते। हो सकता है यहाँ कल फिर से कैंडल नीचे की तरफ आए, वो कहाँ तक आएगी वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये वॉच लिस्ट में इसीलिए रखना है या स्टॉक्स ऑन रडार इसीलिए रखने हैं कि जब भी हमारे को कुछ प्राइस एक्शन वाइज कुछ कंफर्मेशन मिलता है रिवर्सल का, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग हैपनिंग एंड वी शुड बी एबल टू प्लान अवर एक्शंस अकॉर्डिंगली। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं आज एक प्रोसेस के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया, रेफरेंस पॉइंट्स के लिए, नो बाइंग सेलिंग एट एनी कॉस्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम इन आवर वीडियोस, purely with an educational intent। Whatever we are sharing is our prime focus।
आप लोग सीखें, अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स बन सकें। यही मेरा एक आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए भी आप अपने लिए पर्सनल गोल है कि सो दैट आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू एनीबॉडी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। So do stay with us, keep motivating us, keep encouraging us with your likes, shares, and subscribes. And this is what internally gives us motivation to bring further the best of the content in a simplified manner. So hope I added some value to your learning today. Go through these videos, on a continuous basis. You will definitely keep on learning something or other thing new, because I have tried my best to bring all my experiences, all my stupidities, all my learnings from my past mistakes in these videos. You will definitely stay assured that you will learn something or others which can help you out in your education, this executional capabilities. So thanks all, stay tuned and be with us. Good night.